Hello, future officers. Welcome to D's Coded once again. I hope all of you are doing very, very well and your studies are going great. So, we are taking up this initiative to help you do the daily PYQ and why it is important to solve the CSAT questions or the mathematics questions every day. Because it is a skill. It is not your daily subjects like history or anything. So to develop any skill, you need daily practice. Further, उस daily practice से क्या होगा? That you will develop effective intelligence. You will develop the power of observance. When you will go through PYQs, you will see that the same pattern is being repeated again and again. So through that, your observance skill would increase, and that would lead you to increase your effective intelligence. And effective intelligence is a very, very important quality of a civil servant. Okay. Further, the more questions you will solve, the more active your brain become. And the more active your brain is, then if you are given some complex problems, then you will be able to solve them very, very easily. जब आप ऑफिसर बन के फील्ड पे जाओगे, आप आईएएस बनते हो, आईएफएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, तो डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस आर देयर. देयर कैन बी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड देयर कैन बी डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कोई मतलब एक स्कीम जो है आपको रन करनी है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है. तो दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. इफ योर ब्रेन इज वेरी मच मैथमेटिकली इंक्लाइंड और उसमें अंदर लॉजिकल थिंकिंग है, तो इट विल बी एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स वेरी वेरी इजीली. So with this, we will start with our daily 6 PYQ because we are in week 2 and week 1 we were doing just 5 PYQ. Today's topic would be number system and the subtopic would be number of zeros. Okay. Every year from number of zeros, you will get around 1 to 2 questions. ठीक है. एक क्वेश्चन तो पक्का ही है, दो भी आ जाते हैं, एक्स्ट्रा भी आ सकता है. ओके. The direct questions from this topic come very rare. They generally come in consonance with your concept of divisibility. तो फर्दर हम डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट लेंगे तो फिर और क्वेश्चन नंबर ऑफ यूज के करेंगे. जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस है उनको केटर करेंगे और कुछ हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस लेंगे. तो हम क्वेश्चन अब हम निकालते हैं. जस्ट टेक आउट 2020 यूपीएससी सिविल सर्विस 2024 क्वेश्चन पेपर सेट ए, and in that first we'll take up some comprehension. Take out question number 11. Okay, question number 11, the comprehension is as this. Directions for the following four items. Okay, read the following passage and answer items that follow the passages. Your answer to these items should be based on passage only. This is the very important line that your answer should be based on this passage only. Why it's important? Because most of the articles which would be there in this comprehension thing, they are generally based on your general studies. Okay, and in general studies you must have studied something about it. सो आपके पास कोई पहले से नॉलेज है उस चीज के बारे में. पर जो ये पैसेज के हिसाब से जो स्टेटमेंट्स आती हैं, दे माइट डिफर फ्रॉम योर नॉलेज एंड यू माइट मार्क देम करेक्ट इवन इफ दे आर इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज. तो वट एवर this passage says is correct and whatever you yourself know about the same topic, you should not consider that as correct. Okay, try to keep this in mind. If the passage says that cats can eat elephant, then it is true. You cannot say from your real world experience that cat can never eat elephant because elephant is a large mammal and cat is very small. Okay, I hope this is clear to you. With this, we'll start this passage number 1. Today, we consider cities such as New York, London, Paris as some of the most iconic cities in the world. Okay, why they are iconic? It is because plans carrying a heavy system approach were imposed on their प्रीसेंट्स. ओके, प्रीसेंट्स मीन कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी जो एक पर्टिकुलर काम के लिए बनी है. ठीक है, कि जैसे एक लोकेलिटी में सिर्फ आप शॉपिंग करने जा सकते हो, वहां आप गाड़ियां नहीं ले जा सकते, तो वो उस लोकेलिटी का फंक्शन है. ठीक है. The backbone of system theory is the process of translating social, spatial, and cultural desirable into mathematical model.
जो सिस्टम थ्योरी का बैकबोन है वो ये है कि जो सोशल स्पेशल कल्चरल डिजायरेबल है उसको मैथमेटिकल मॉडल्स में लेकर आना यूजिंग कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन एंड एंड एन एल्गोरिथम वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है। सिस्टम थ्योरी का बैकबोन है वो ये है कि जो सोशल स्पेशल कल्चरल डिजायरेबल्स हैं हमारे उनको मैथमेटिकल मॉडल में लेकर आना कंप्यूटेशन स्टैटिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन या एल्गोरिथम के तरीके से। और जो सोशल स्पेशल कल्चर हमें चीजें चाहिए उनमें जो प्रॉब्लम होती है उनको इस तरीके से सॉल्व करना। The early universities of West, which began to train professionals in planning, spawned some of the most ingenious planners. जो अर्ली यूनिवर्सिटीज थी वेस्ट की जिन्होंने ट्रेन किए प्रोफेशनल प्लानिंग उनके पास थे काफी अच्छे प्लानर्स। ठीक है। हु वर एक्सपर्ट्स इन दीज डोमेन, जो उन एक्सपर्ट्स में डोमेन थे। दिस वॉज बिकॉज दीज वर सब्जेक्ट दिस वॉज बिकॉज दीज वर सब्जेक्ट्स These very subjects were absorbed into planning curriculum, had its root in social sciences, geography and architecture. ये इसलिए था क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है इनके रूट्स साइंस ज्योग्राफी और आर्किटेक्चर में थे। प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम वेस्ट। जो इंडिया में प्लानिंग है वो एजुकेशन और उसकी एजुकेशन जो वेस्ट का मॉडल है उससे डिफर करती है। ठीक है। अब पैसेज के हिसाब से आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये बिल्कुल करेक्ट हमें लग रहा है बिकॉज ये यहां पर कह रहा है कि जो वेस्ट के पास प्लानर्स थे वो मतलब जो यूनिवर्सिटीज में थे वो इंजीनियर्स प्लानर थे, वो एक्सपर्ट थे इन डोमेन्स में। ठीक है। और उनके जो रूट्स थे ये जो जो सब्जेक्ट है प्लानिंग का जो इसके रूट्स थे वो साइंस ज्योग्राफी और आर्किटेक्चर में बेस्ड थे। तो इसका मतलब है डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा है। तो ए हमारा ठीक है। इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। एक्चुअली ये इस पैसेज के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। ठीक है। ये अगर जब हमने खुद पढ़ा हुआ है, जब हम इंडिया में ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी की वजह से रेड टेपिज्म और सेटबैक्स हैं, तो आप इसको करेक्ट मान लोगे पर आपको करेक्ट नहीं मानना बिकॉज पैसेज इज नॉट सेइंग दैट। ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इन इंडिया मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज लोकल अफेयर विद अ क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड। ये इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक है, पर पैसेज के हिसाब से ये नहीं ठीक है क्योंकि पैसेज में इसके बारे में बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ये आप इंडिया के अंदर जो पढ़ते हो पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में उसके हिसाब से एक बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इट्स नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। With high density of population, widespread poverty in our urban areas, land development in them is very difficult. लैंड डेवलपमेंट के बारे में यहाँ कोई बात करी नहीं गई है। ठीक है। हालांकि इंडिया स्पेसिफिक स्टेटमेंट ठीक है ये, पर वैसे गलत है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो ऐसी स्टेटमेंट्स बनाएगा जो आपको इस टॉपिक के बारे में पहले से पता होंगी। ठीक है। जो आप न्यूज़पेपर्स वगैरह या डे टू डे जो जीएस की चीजों में प्रॉब्लम्स देखते हैं उसके अंदर ही होंगी। बट पैसेज के अंदर वो ना हो तो फिर वो गलत रहेगी। अगर पैसेज भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. India needs a new generation of urban professional with knowledge relevant to modern urban practice. ये हमारा ठीक है क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि वेस्ट में तो ऐसा हो ही रहा है कि जो अर्बन प्रोफेशनल है उनके पास रेलेवेंट नॉलेज है, पर इंडिया का सिस्टम ऑफ एजुकेशन और प्लानिंग डिफर कर रहा है। तो अगर इंडिया ये वाले अडॉप्ट करेगा अप्रोच तो ठीक रहेगा। ये assumption हम ले सकते हैं, फर्स्ट ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिस्टम्स अप्रोच। ऐसा इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बात करी ही नहीं गई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो विच ऑफ द assumptions given below is करेक्ट? तो वन इज ओनली ए, ट्वेल्थ का ए। ओके। आई विल टेक अप द पैसेज नंबर 2। नॉट एवरी वॉइस ऑन इंटरनेट कमांड्स द सेम ऑडियंस। हर एक आवाज इंटरनेट के अंदर सेम ऑडियंस के लिए नहीं बनी है। When anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinions, they are effectively buying a louder voice. जो अनोनिमस प्राइवेट एंटिटीज हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो पैसे देके जो वो कंटेंट फीड करवाना चाहते हैं ना ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को वो फीड करवा सकते हैं। ये नरेटिव मतलब सेट कर सकते हैं अपना एक तरीके से, ये कह रहे हैं।
If political discourse in digital sphere is a matter of outshining one's opponent till the election is won, the quality of politics suffer. Okay. अब ये कहने का इसका मतलब ये है कि जैसे डिजिटल स्फीयर है उसपे एक ही पॉलिटिकल पार्टी के आदमी की बार बार उसी को आउटशाइन या उसी की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रहे हैं, तो हम कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। उस तरीके से क्या होगा कि जो अगर वो आदमी पॉलिटिकली केपेबल है बहुत सारे अच्छे काम आपके करने के लिए, तो उसके वो काम सामने नहीं आएंगे। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपनी फोटो दिखाता रहेगा आपको, और आपके दिमाग में उसी का चेहरा आपके पास इम्प्रिंट हो जाएगा, एंड यू आर मोस्ट लाइकली टू वोट दैट पर्सन। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर करती है उसकी वजह से। द फोकस ऑफ सोशल मीडिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू, ओके, focus of social media is restricted to promotion of content that generates more user engagement regardless of how inflammatory the content may be। ठीक है, तो जितना ज्यादा यूजर्स देखेंगे वो वैसा होता है, चाहे कंटेंट कितना भी खराब हो। ठीक है, ये कहना चाहता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ओके, अभी देखते हैं। ऐसा कहीं बोल नहीं रहा कि सोशल मीडिया एक इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की तरह काम करता है, ऐसा कहीं अभी कहा नहीं गया पैसेज में, इसको काट दो। सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मोरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट्स बिल्ड बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट। ये आप कह सकते हो, बिकॉज ये जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है वो यही कह रहा है कि द फोकस ऑफ सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्टेड टू प्रमोशन ऑफ कंटेंट दैट जनरेट्स मोर यूजर एंगेजमेंट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इन्फ्लेटरी द कंटेंट में बी। ठीक है, तो इससे मैच कर रहा है बी वाला। सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी के बारे में बात ही नहीं हुई। इन टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म सोशल लाइफ, ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया, ये भी गलत है। आपका बी सही है बस इसके अंदर, 13 का बी। ओके, वाई, बिकॉज वो कह ही रहा है कि सोशल मीडिया जो है, जो कंटेंट चाहा जाता है प्रॉफिट के लिए उसी को प्रमोट करने के लिए बना है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। 14, based on above passage, the following assumptions have been made. Internet is not inclusive enough। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां से देखें, इसने कहा कि when anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinion, they are exclusively buying a louder voice। मतलब जिसके पास पैसा है वो अपना कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है, तो इसकी वजह से इंटरनेट इंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, ये कोई भी कंट्रोल कर सकता है, इसके पास ज्यादा पैसा है। इंटरनेट कैन एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन द कंट्री, ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड ओवर हियर दैट जिस पॉलिटिकल फिगर के बारे में ज्यादा दिखाया जाएगा मतलब सोशल मीडिया पे या डिजिटल स्पीयर में, उसी के जीतने के चांस ज्यादा बनेंगे, तो ये क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स को सफर कराता है। तो आपका 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, तो आंसर सी हो जाएगा 14 का, बोथ 1 एंड 2। नाउ वी आर डन विद द कॉम्प्रिहेंशन। अब सेट ए में ही 2024 पेपर में हम नंबर ऑफ व्यूज का क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे पास। ओके, लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। Oh, this kind of question we have already done in our illustration on the lecture of number of zeros. If you have not done the number lecture on number of zeros, you can go and visit it। अभी मैं आपको यहाँ भी कंसेप्ट बता दूंगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए, नंबर ऑफ जीरोस के लिए अब जीरो कैसे बनता है, जीरो आएगा आपका 10 से। ठीक है, तो जितने भी एक एक्सप्रेशन में 10 होंगे उतने जीरो बन जाएंगे। अगर किसी में एक्सप्रेशन में 100 है, तो इसका मतलब उसमें 10 × 10 दो 10 है, तो दो 10 का मतलब दो जीरो। अगर किसी एक्सप्रेशन में 1000 है, तो उसके अंदर 10 × 10 होगा, तो तीन 10 का मतलब तीन जीरो, तो उसमें तीन जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब हाउ 10 इज मेड, 10 इज मेड बाय 2 × 5। ओके, 2 and 5 को मल्टीप्लाई करोगे 10 बन जाएगा। तो अगर एक एक्सप्रेशन में जितने नंबर ऑफ 2 हैं और 5 हैं उतने नंबर ऑफ 10 बना देगा वो, पर इक्वल होने चाहिए 2 और 5, तभी तो वो 10 बना पाएगा। अगर 2 ज्यादा है और 5 कम है, तो जितने नंबर ऑफ 5 हैं वो 10 बनाएंगे, क्योंकि उतने नंबर ऑफ 2 अवेलेबल है, क्योंकि 5 कम है। तो अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ 10 काउंट करने हैं, तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन रिड्यूस दैट एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ the factors of 2, 5 and then count the number of 2 and 5, whichever is less. If 2 is less, number of tens would be number of 2's. If 5 is less, the number of tens would be how much we have the number of your 5। Okay, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को देखो।
1 into to the power 2 to the power 4 into 3 to the power 6 into 4 to the power 8 into 5 to the power फिर 10 आएगा यहाँ पर into your आगे चलता जाएगा 25 to the power 50 तक. Okay. You see one thing over here that before this 5 there are 2 to the power 4 and 4 to the power 8. So ये 2's बनाएंगे. तो इसका मतलब number of 2's are already more than number of 5. So we only need to consider the number of 5. तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें 5 कहाँ कहाँ से आएगा देखो 5 टू द पावर 10 से आएगा ठीक है फिर अगला आएगा इसके पास 10 का जो आएगा तो ये आपका आएगा 10 टू द पावर 20 पे फिर अगला जो 5 ये मुझे देगा वो 15 से देगा तो 15 टू द पावर 30 पे देखो जो भी यहाँ पर है उसकी डबल पावर होती है यहाँ 10 या 20 15 का 30 हो गया तो बस पावर को ऐसे जाना अब 20 था फिर अगला 20 से देगा तो 20 टू द पावर 40 हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट देगा ये आपको 25 से तो 25 टू द पावर 50 ये भी डबल हो रहा है तो हम इसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं 5 टू द पावर 10 इंटू 2 इंटू 5 टू द पावर 20 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर योर 30 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 to the power 40 into your 5 into 5 to the power 50 ओके सो जितनी भी 5 की पावर्स है ना यहाँ पर जो कि है 10 है यहाँ पे 5 की पावर 20 है यहाँ पे 5 की पावर 30 है यहाँ पे 5 की पावर 40 है यहाँ पे 5 की पावर ये 2 टाइम्स इंटू 50 है तो 5 की पावर्स लिख दो बस सारी 5 टू द पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 20 इंटू योर 5 टू द पावर 30 इंटू योर 5 टू द पावर 40 और यहाँ पे देखो एक ये इधर समझने की कोशिश करें अगर आपको पास ऐसे लिखा है 5 टू द पावर 5 अगर किसी भी दो चीजों का बेस सेम है अब इस 5 की पावर 1 है इसकी 1 ये बेस बोलते हैं इसको और ये पावर होती है तो अगर किसी का भी बेस सेम है तो जो ऊपर वाली पावर्स है आप इसको ऐड करके लिख सकते हो तो 5 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 5 टू द पावर 2 और अगर इसके ब्रैकेट में ऐसे कुछ लिखा है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 इंटू 2 इंटू 50 हो जाएगा तो इसकी पावर 100 हो जाएगा मतलब ये तो हो जाएगा ये 5 टू द पावर 2 और 50 अब ये सारी पावर्स को ऐड कर दो जो 5 पावर 10 था यहाँ 20 थी यहाँ 30 थी यहाँ 40 और यहाँ 100 तो ऐड कर दो 10 प्लस 20 प्लस योर 30 प्लस योर 40 प्लस योर 50 into 2 is 100 so you can add them so this would give you your 30 plus 70 plus 100 this would give you your 200 so your number of zeros would be 200 that is the answer is D over here I hope this is clear to you ठीक है तो अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन यही आया था बाकी जो क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोस के आते हैं वो डिविजिबिलिटी या यूनिट डिजिट के साथ मिक्स होकर आता है वो टॉपिक अभी हमने करा नहीं तो उन क्वेश्चंस को अभी नहीं लेंगे जब यूनिट डिजिट के क्वेश्चन टॉपिक लेंगे तो विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस फर्दर तो नाउ विल टेक अप योर direct question that came in 2020 paper set A and your question number is 7 okay very very easy question आप ये कह सकते हो कि 2020 का पेपर पहले आया था तो इसी बेसिस पे ही बाकी क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है वो हाउ मैनी नंबर ऑफ जीरो आर देयर इन द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे मेरे पास ठीक है तो हमने पहले से ही हमने करा हुआ है कि जितने नंबर ऑफ आपके पास 2 या 5 होंगे उसको आप काउंट कर लो आपका आंसर आ जाएगा तो कुछ नहीं करना इस एक्सप्रेशन को आप खोलना शुरू करो ये 1 इंटू 5 लिखो इसको लिखो 2 इंटू 5 इसको लिखो आप 5 इंटू 3 काउंट कर लो जो कम आएगा वही होगा 2 इंटू 2 इज 4 इंटू 5 इज योर 20 देन इज योर 5 इंटू 5 देन 30 को आप लिखो 2 इंटू 3 6 इंटू 5 इज 30 देन इंटू योर 5 इंटू 7 इज 35 फिर फर्दर नीचे लिख रहा हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू योर फिर 10 2 इंटू 5 then is your 5 into 9 and then is your 5 into 2 into 5 and then is your 5 into 11 then is your 2 into 3 is 6 and in 10 के लिए 2 into 5 तो हमने इसको इसमें डिड्यूस कर लिया ठीक है तो अब आप काउंट कर लो नंबर ऑफ 5 और 2 को 5 को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो 5 आपके हैं कितने 14 फाइव्स हैं आपके पास 40
14 है आपके 5। 2 को काउंट करो, जो भी लेस होगा वही आंसर देगा। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 आ रहे हैं टूज, नंबर ऑफ टूज इज 10। तो 10 आए नंबर ऑफ टूज। सो अब हमें 10 बनाने के लिए 2 एंड 5 चाहिए होता है। तो अगर जितने नंबर ऑफ टूज है उतने ही 10 बन पाएंगे ना, क्योंकि वो जो बचे हुए 5 हैं, जो 4 बचे हुए 5 है यहाँ पर, क्योंकि 14 5 थे, तो जो 4 बचे हुए 5 है उनके पास 2 ही नहीं होगा 10 बनाने के लिए। तो जितने नंबर ऑफ टूज है उतने 10 बनेंगे। तो जो हमने बात की है कि जो लेसर होता है उसको काउंट कर लेते हैं। तो 2 नंबर ऑफ टूज हमारे पास 10 है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जो कि है 10 आपके पास। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए नंबर ऑफ जीरोस का इसका लेक्चर देखो। ओके, सो डेली प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम वीक नंबर आपका 2 में है, एंड व्हाट वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ इज वी हैव डन योर नंबर ऑफ जीरोस एंड योर प्राइम एंड कंपोजिट, एंड साथ साथ में हमने उनके पीवाईक्यूज भी कर लिए। ओके, सो नंबर ऑफ जीरोस के आपके ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन ले लीजिए, प्राइम एंड कंपोजिट के 2। तो ये 3 क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं वो बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे आते हैं, तो इसका एडवांटेज आपको मिल सकता है। तो 25 इंटू 3 इज योर 5 3 15 3 6 7 7, तो 7.5 मार्क्स का अभी तक आपने गेन वीक 2 में दे दिया है। और वीक 1 में यू हैव ऑलरेडी टेकन द गेन ऑफ 12.5 मार्क्स। अगर आपने वीक 1 के सारे वीडियोस को देखकर फिर से खुद रिवाइज किया है तो 12.5 मार्क्स कहीं नहीं गए, और यहां से भी कर लोगे तो 7.5 भी आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट पे आता है। पीवाईक्यू एंड कंसेप्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। सो विद दिस वी वुड लाइक टू end this over here. Thank you so much. Have a nice day. Keep progressing in your life. Keep working hard. Success is surely yours. Thank